जी बसपा आप एक मिनट स्टार्ट कर लें सर। Assalamu alaikum. This is Vasfa Fatma from 360 Digital Eyes. 360 Digital Eyes is a digital marketing platform that provides marketing solutions, training, testing, and other multiple services under one umbrella. We are doing this program in collaboration with Rotary Club and FMF. And today we'll be discussing the impact of Budget 2020 on business and taxation. And if you guys have any question, you can just drop those questions in our chat box and we'll try to answer that in the last 10 minutes of our session. Let me introduce you guys with our guest speakers today. Our first guest speaker is Sheikh Imtiaz Hussain from Imtiaz Enterprises and Senior Vice President of America-Pakistan Business Development Forum. He's also serving in Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, Karachi Chamber of Commerce and Industries, and Asia Pacific Chamber of Commerce and Industry. He's also elected President of Rotary Club of Karachi Avenue for the year 2020 to 21. We also have with us Mr. Faisal Maqsood, who's a fellow member of ICMAP, associated with Lucky Cement Limited as Senior Manager Finance and Accounts since 2011. Besides this, he's also a motivational speaker who provides training sessions at various education institutes such as IBA, ICRA University, Beria, and NAB University. Lastly, we also have Mr. Abid Hussain, who is the founder of Sequest Logistics Services, CEO of the Lawyers, and also associated with training and development at Institute of Business and Taxation, IBT. So, Assalamu alaikum. I hope you all are doing fine. So, I just want to say that I think it's that time of the year when everyone has something to say about the financial and economical condition of the country. Maybe because recently just the government presented us with a budget of 7 trillion rupees for the year 2020. But I think most of us want to talk about it or have something to say about it because either we want to favor the political party who's in power and introduce this budget, or because they want to criticize the political party who introduced this budget in order to favor the political party who's sitting on the opposition side. But in actual, we don't know the meaning behind this budget. हमें पता ही नहीं होता कि इस budget का purpose क्या है. So I'll be starting this session with Sir Faisal Aapse. And my question would be, can you explain the budget in layman terms? What is the purpose behind it? Why does the government talk about it every year? And what impact it can make in our economy and businesses? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सब पार्टिसिपेंट्स को बहुत अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा MFM और रोटरी क्लब का, और इसके अलावा आबिद हुसैन साहब का, जिन्होंने आज ये मौका दिया कि आज हम ये जो है एक वेबिनार जिसकी वजह से हमने अरेंज किया पोस्ट बजट के ऊपर। जी, तो वास्वा सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन की जानिब आऊँगा कि बजट का बेसिकली मतलब क्या है। देखें, बजट जो है बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बेसिकली एक एस्टिमेशन है जिसके अंदर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी आने वाले साल के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होंगे और उनके बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा होता है उसे हम बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो हमारे रेवेन्यू साइड्स जो हैं वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा एस्टिमेट हो जाए तो उस सूरत हाल में हम उसको सरप्लस बजट का नाम देते हैं। और अगर हमारे बजट्स के अंदर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इक्वल हों तो वो एक तरह से हमारा बैलेंस बजट जो है उसको हम एज अ बैलेंस बजट का नाम देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बजट बनता है बेसिकली वो डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अमूमन हर साल जो है हमारे रेवेन्यूज जो है एक्सपेंसेस से रिड्यूस ही होते हैं, यानी डिक्रीज होते हैं। हमारे एक्सपेंसेस हर साल एस्टिमेटेड होते हैं हायर साइड पे, हमारे रेवेन्यूज एस्टिमेट होते हैं लोअर साइड पे, और हम उस डेफिसिट को बेसिकली जो है वो फिल आउट करने की कोशिश होती है हमारी हर बजट के अंदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कभी भी कवर नहीं हो पाता। कोशिश यही होती है कि हम उसको इंक्रीज रेवेन्यूज को हम कैसे जनरेट करें, थ्रू इंक्रीज टैक्सेस करें, और लेकिन इसके बावजूद जो है हमारी टैक्सेस की जो कलेक्शन है वो हर साल डिक्रीज होती रहती है। उसकी बेसिक वजह ये है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो लोगों का जो हमारा जो है कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है टैक्स मशीनरी पे हर साल रिड्यूस होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो एस्टिमेशन से जो एक्चुअल जो कलेक्शन है वो हमेशा डिक्रीज होती है, और हमारे डेफिसिट्स जो हैं वो रिकॉर्डेड हाई साइड पर होते हैं।
यही चीज जो है आईएमएफ के अंदर भी जाती है, और आईएमएफ जो है वो आपको डिक्टेट हर साल बेसिकली डिक्टेशन देता है कि आपने अपना टैक्स डेफिसिट जो है, या सॉरी बजट डेफिसिट, अगर मैं ज्यादा इसको एक्चुअल टर्म्स में कहूँ, इसको आप डिक्रीज करें। लेकिन हमारे यहाँ, हम जैसे ममालिक के अंदर, खुसूसन हमारे मुल्क के अंदर, जहाँ पर के ब्लैक मार्केटिंग और जहाँ पे करप्शन ऑल टाइम हाई होती है, वहाँ पे टैक्स जो हमारी मशीनरी है वो बेसिकली इतनी आउटडेटेड हो चुकी है कि वो कलेक्शन हमारी कभी भी उन एस्टिमेटेड जो है फिगर्स पे नहीं आ पाती। बेसिकली जो बजट का मतलब है वो एक एस्टिमेशन है ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। उम्मीद है कि ये जो है आपका सवाल आंसर हो गया होगा। जी, ओवर All टू right. यू। All right. My next question will be with Sir Imtiaz. As you all know that we are going through a pandemic right now, and this pandemic has had far-reaching consequences beyond the spread of the disease itself. And I think it has destroyed a lot of industries and businesses. So, Imtiaz, sir, I would like to know your point of view that what is the current situation of businesses in a post-COVID scenario, and how is this budget compatible considering the current situation? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये इस सूरत हाल में जो बजट आया है, हम इसको कोरोना बजट का नाम दे रहे थे, और हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो इसी हवाले से गवर्नमेंट से ये थी कि वो कोई हमें रिलीफ मिलेगा। जो बिजनेसेस इस वक्त लॉकडाउन की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, उनके हवाले से हमने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें हमें बड़ी मायूसी हुई। जिस तरह पहले होता है, इस गवर्नमेंट ने पहले भी बजट पेश किया, लफ्ज़ों का हेर फेर था। इस दफ़ा भी हमें यही चीज़ें देखने में आई कि ये लफ्ज़ों का हेर फेर था सिर्फ, और किसी किस्म का इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है वो नहीं लेके जाया गया मुल्क को, जो कि इस वक्त अशद ज़रूरत थी। हम जो है वो अपनी इम्पोर्ट्स कट डाउन कर बैठे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी कोई तवज्जो नहीं दी। करंटली अगर आप देखें, जो हमारा एक रूटीन जो चली आ रही थी लास्ट फ्यू ईयर्स से, वी वर टारगेटिंग एक्सपोर्ट्स फॉर 24 बिलियन यूएस डॉलर अप्रोक्सीमेटली। कोरोना की वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये था कि 20 बिलियन तक फॉल हो जाएगी हमारी एक्सपोर्ट्स, और हमें इसे सर्वाइव करना होगा। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी जो है वो हमारी रिकमेंडेशंस जो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से दी जाती हैं उनको कंसिडर नहीं किया, और प्रेजेंटली अभी 18 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स रह गई हैं सिर्फ। और फर्दर हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि अब ये मज़ीद गिरेगी। जो हमारी तरफ से अच्छे प्रपोजल गए थे फेडरेशन की तरफ से, चैम्बर्स की तरफ से, और एसोसिएशन की तरफ से, और बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से डिफरेंट, उसमें हमने कोई अननेसेसरीली रिलीफ नहीं मांगा था। हमने एक्सपेक्टेशन ये रखी थी कि जैसे दूसरे ममालिक अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, हमें कम से कम एटलीस्ट उस लेवल पे आ जाना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपेटेबल हों और सरवाइव कर सकें इस पेंडेमिक की सूरत हाल में। तो जिसमें हमारी जो मेजर जो रिक्वेस्ट थी वो उसमें ये थी कि सबसे पहले हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर ज़ीरो कर दिया जाए इस वक्त, तो वो सबसे बेहतर होगा। एक तो सूदी निज़ाम से भी हमारी जान छूटेगी, और दूसरा जो है इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइवल के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए लोन्स ले सकेगी और फर्दर आगे बिजनेस को एनहेंस कर सकेगी। दूसरा जो हमारा मेजर रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि टैक्सेस को जो है वो सिंगल डिजिट में लाया जाए। जिस तरह सेल्स टैक्स है, ये 17%, 18%, 15% इम्पोर्ट्स पे और डिफरेंट चीज़ों पे लगता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट थी कि गवर्नमेंट इसको सिंगल डिजिट में ले आए, ताकि जो है वो आवाम को भी रिलीफ मिल सके और इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिल सके, जिनको गवर्नमेंट ने जो है वो टोटली निगलेक्ट किया, और जिसके नताइज अब सामने आ रहे हैं। जैसे आपके सामने इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल जो है वो शट डाउन हो गई है और नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अलग एक बहरान का शिकार है, जिसमें अभी रिसेंटली जो फर्दर क्राइसिस हो गया है। आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पे जो है वो बिजली की भी सप्लाई प्रॉपर मैसर नहीं है। पहले ही इंडस्ट्री इतना हर्ट हो चुकी थी और एक्सपोर्ट के जो है वो ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे, और एलसीज जो थी बाहर की वो इस वक्त जो है नहीं हो रही थी यूटिलाइज, और अब जो है वो के इलेक्ट्रिक ने मजीद उसमें जो है वो एक बहरान खड़ा कर दिया। तो बहुत सारे ये सिनेरियो हैं, और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सीरियसली टेकअप नहीं कर रही है चीज़ों को,
और आने वाले मजीद जो 6 मंथ हैं ये बड़े ख़तरनाक होंगे इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे ख़ुसूस तौर पे SMEs के लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट मजीद बढ़ने का खदशा है। That's it. All right. Okay, so now I would like to move to Abid San, Abid Hussain. Sir, so my question would be, since you have a vast experience in taxation and my budget mein ye dekhe, there were a lot of in various aspects of taxation, especially custom and indirect taxes. So my question would be how these changes are benefiting the retailers, the restaurant owners, the industries, and how through these changes we can ease the COVID crisis. आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आबद साहब आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, माइक का प्रॉब्लम। अच्छा, अभी जो बजट के हवाले से भी जो इम्तियाज साहब ने जो बात की है, तो उसी बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो जो बजट हमें जो पेश किया गया था जो असेंबली पे, उसके बाद जो बजट पास हुआ है उस पर जो चेंजेस आई हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है तरह से ना। अगर हम उसको अपने टेक्निकल तरीके से देखते हैं तो उस पर इन्होंने जैसे कस्टम्स है या कोई इनकम टैक्स का है या सेल टैक्स है, ये फर्दर इस पर टैक्सेस में इन्होंने इजाफा किया हुआ है उन्होंने। जैसे उन्होंने बजट में ऐलान किया था कि टैरिफ लाइन पे तकरीबन 1600 टैरिफ लाइन पे ड्यूटी कम की उन्होंने रॉ मटेरियल से और चीज़ों पे। इसी तरह जो आरडी है, रेगुलेटरी ड्यूटी है, उस पर इन्होंने कमी की है, जैसे फैब्रिक पे, सैनिटरी वेयर्स पे, ताकि ये स्मगलिंग से रोक सके। लेकिन हम देखते हैं कि भाई आरडी बल्कि मजीद 2 से 2.5% उन्होंने इजाफा किया उस पर पॉलिस्टर यार्न पे, ये ऑलरेडी हो गया। उसके बाद जो उन्होंने जो कोरोना वायरस के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो आ रहे थे पैंडेमिक के हवाले से, उस पर 2 मंथ्स के लिए उन्होंने ड्यूटी फ्री की उन चीज़ों पर। अच्छा, इसके अलावा जो अभी मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो मेजर जो फर्क पड़ा है ड्यूटी में और खासकर टैक्सेशन पे, उस पर ये हुआ है कि जितने भी आइटम्स ने पिछले बार गवर्नमेंट ने जो सहूलत दी थी जैसे टेक्सटाइल सेक्टर को, 5th शेड्यूल के नाम से एक शेड्यूल था जिसपे आपको जाके ड्यूटी पे काफ़ी बेनिफिट्स मिलते थे। तो अभी इन्होंने किया है, तकरीबन 2000 से ज़्यादा आइटम्स उसमें से उन्होंने निकाल दिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। तो जिनकी अगर ड्यूटी पहले 5% थी, सिंगल डिजिट पे थी, अब उनकी 11% ड्यूटी भरनी पड़ रही है उनको। इसी तरह अगर उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स में भी चेंजेस किए। अगर फर्ज करें किसी आइटम का अगर इनकम 5.5% था तो उन्होंने 2% कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, सेल टैक्स में जाके उन्होंने कुछ टू शेड्यूल को हटा दिया, जिससे मजीद उनको 3% एडिशनल सेल टैक्स पड़ गया। तो ये चीज़ें जो की उन्होंने इंजीनियरिंग बजट पे, तो ये आम लोगों को पता नहीं चल रहा। लेकिन जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट स्टेज पे जो कमर्शियल इम्पोर्टर है स्पेशली, उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है सब, क्योंकि वो जो अभी जो पहले ड्यूटी पेमेंट कर रहा था, तो कई गुना ज़्यादा उनको ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ रही है सब। तो ये जो मेरे हिसाब से बजट जो है, ये अभी इसका जो असरात अभी आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी अपना प्लानिंग नहीं कर सकेगा अपने बिजनेस का, ना एक्सपोर्टर जो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाएगा सही कि मैं कैसे एक्सपोर्ट करूँ, क्या बनाऊँ, क्या रेट इसको दूँ, क्योंकि ये जब तक कि ये कोई मजीद इस पर कोई रिलीफ नहीं देंगे। और मेरे हिसाब से बजट अभी तकरीबन 2-3 महीने बाद इसमें कोई चेंजेस जरूर आएगी। ठीक है। All right. So, like I previously mentioned, that this pandemic has put a lot of businesses and industries in a really, really bad situation. Like, you know, they're suffering through losses, their productivity is going down. So my question would be with Sir Faisal. Can you please identify the industries which are going through a loss and which will be in a loss because of this budget, and what industries are actually benefiting from this budget? जी, शुक्रिया वासवा, आपने एक बहुत अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो आस्क किया है। और इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि बेसिकली जहाँ पर हम लूजर्स या विनर्स की बात करते हैं, तो जैसा कि अभी जैसे आबिद साहब ने भी अर्ज किया और इम्तियाज साहब ने उससे पहले अर्ज किया कि बेसिकली ये जो हमारा बजट आया है, ये एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर आया जो उससे पहले कभी भी हमने फेस नहीं की। इफ वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द बजट्स, देखें बजट्स जो है पिछले 100+ ईयर्स से हर मुल्क के अंदर बनते हैं, जब से इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड स्टार्ट हुई है, जो कि 100+ ईयर्स जिसको हो गए।
तो लेकिन उस पूरे 100+ ईयर्स के अंदर जितने भी हमारे बजट्स आए, जितने ही मुल्क में बजट्स आए, उसमें एक ऐसी सिचुएशन पहले कभी भी ये फेस नहीं हुई कि हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर अब आ गए हैं जिसमें हमारा जो मेन मकसद है वो इकोनॉमी से ज्यादा हेल्थ और क्या नाम है, हेल्थ और लाइफ है। अगर मैं इसको इस कंडीशन को ये नाम दूं कि इकोनॉमी से ज्यादा जो फोकस है लोगों का वो हेल्थ और सेफ्टी पर और लाइफ पर है, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में इस वक्त इकोनॉमी जो है वो एक तरह से जो है वो एक तरह से हमारे बैकफुट पे आ गई है और फ्रंट फुट के ऊपर हेल्थ और सेफ्टी वाले क्या हमें चीजें आ गई हैं। तो जो भी मुल्क अपने बजट्स बना रहे हैं उनका मेन फोकस जो है वो हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर ही है, ना कि इकोनॉमी को रिवाइव करने में है। बल्कि ज्यादा जो इस पे फोकस है वो इकोनॉमी को सस्टेन करने में है। तो यही कुछ जो है हमें इस बजट में भी नजर आता है कि इस बजट के अंदर बेसिकली हुकूमत ने कोशिश की है कि हम अपने मुख्तलिफ एरिया को सस्टेन रखें। रिवाइवल की अभी बात नहीं हो रही। जो मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये कि अभी हम रिवाइवल की जानिब अभी नहीं जा सकते फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स तक जो है हमें इसी पेंडेमिक के अंदर रहना है और इसी का हमने मुकाबला भी क्या नाम है करना है और इंशाल्लाह हमने इसमें से निकलना है। जैसे कि WHO का एस्टिमेट है कि जनवरी 2021 तक जो है यहाँ पाकिस्तान से जो है वो इस पेंडेमिक का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो 6 मंथ्स हैं इसके अंदर जो बेसिक जो मेन फोकस है वो उन मेजर्स पे ज्यादा होगा जिससे कि इस पेंडेमिक का जो है हम लोग मुकाबला जो है सख्ती और कामयाबी से इसका जारी रखें। देख, तो अब हम आते हैं आपके आपका जो मेन क्वेश्चन था कि कौन से लूजर्स हैं और कौन से इसमें विनर्स हैं। तो इसके अंदर जो मेरा अपना ओपिनियन है कि जो मेन इसमें लूजर्स हैं बजट के अंदर, एक तो इसमें सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि जो हमारी जो है ये मेन लूजर है, ये हमारी वो सिगरेट या ये टोबैको इंडस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर जो अगर हम देखें तो FET जो है वो तकरीबन 100% जो है इसको इंक्रीज कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि जो प्राइजेस हैं सिगरेट और दूसरे रिलेटेड आइटम्स की वो 100% इंक्रीज हो जाएंगी। बेसिकली इस मेजर का जो मेन जो मकसद है, जो मेन मोटिव है वो ये है कि हेल्थ के अंदर के इन चीज़ों की सेल और परचेज को रिड्यूस कर दिया जाए ताकि हेल्थ के ऊपर जो है वो अच्छे असरात जो हैं वो जाहिर हों। तो और इसके अलावा जो मेन जो है इसमें लूजर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर हम इस बजट के अंदर देखें तो 7.5% FET जो है वो इम्पोज हो गई है उन डबल केबिन व्हीकल्स के ऊपर जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती है। यानी कि पहले जो है इस क्लासिफिकेशन को जो रखा जाता था, जो डबल केबिन व्हीकल्स थी उनको एज अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के तौर पे हुकूमत लेती थी, लेकिन इस मरतबा उसको एज ए लग्जरी आइटम के तौर पे ये चीज जो है इसको क्लासीफाई हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इसको ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा एक लग्जरी स्टेटस सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर इसीलिए उन्होंने 7.5% जो है FET इम्पोज हो गई ऑन लोकली असेंबल्ड व्हीकल्स। इसके अलावा अगर आप इसको इंपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो उस पर यही ड्यूटी का फिगर 25% हो जाएगा। तो एक तो मेन जो है लूजर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। फिर नेक्स्ट अगर हम इसमें जायजा लें तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली एक बात जो कि हमारे सामने आती है वो ये कि हुकूमत ने बारहा ये बात जो है ये इसको दोहराया, इसको रिपीट किया है कि देयर इज नो एडिशनल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इन दिस स्पेसिफिक बजट। बट जो चीज सामने आती है वो कि टैक्सेस तो नहीं है, बट जो पुराने टैक्सेस हैं उसको भी रिड्यूस नहीं हुए, उनकी परसेंटेज वही है। तो इन क्या नाम है रियल टर्म्स देयर इज अ टैक्स, there is an increase in the tax although there is no new tax. Increase in the tax का मतलब क्या है कि अगर आप रेवेन्यू स्ट्रीम में जा रहे हैं तो the revenues have reduced. When the revenue has reduced और टैक्स का लेवल उतना ही रहेगा तो इन क्या नाम है रियल टर्म्स taxes have increased as compared to the revenues because आपके रेवेन्यू जो हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे। तो मैं इस बात से जो है एक तरह से इख्तलाफ रखता हूं कि देयर आर नो न्यू टैक्सेस। यस, देयर आर नो न्यू टैक्सेस, बट देयर इज एन इंक्रीज टैक्स बिकॉज ऑल परसेंटेज ऑफ द टैक्सेस हैव रिमेन द सेम।
एज सेम एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, चाहे वो जनरल सेल्स टैक्स हो, चाहे वो सैलरी के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स हो, चाहे वो और किस्म के टैक्सेस हों। तो सबसे अगला जो है इसके अंदर सेक्टर जो कि इम्पोज जो कि इससे इफेक्ट हुआ है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसका बहुत बड़ी जो डिमांड थी वो जीरो रेटिंग सेल्स टैक्स की थी, जो कि नहीं हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था कि होगा मगर वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आगे बहुत ज्यादा सफर हो रही है। आगे इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर्स जो हैं वो आए दिन क्या नाम है ऑर्डर्स जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, बल्कि ऑर्डर कैंसिल आउट हो रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि सरप्लस स्टॉक है, वहां पे मैन साइजिंग हो रही है, डाउन साइजिंग हो रही है, वहां पे मैन पावर को रिड्यूस क्या नाम है हो रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो उनका एक बहुत बड़ा एक जो है मुतालबा था कि उनको जीरो रेटेड की फैसिलिटी हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस बजट के अंदर मौजूद नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर दो मेन कैटेगरीज हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं और एक हमारे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स वो हैं जो कि डायरेक्टली जो है माल मैन्युफैक्चर कर आपकी इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स वो हैं जो कि इनको सप्लाईज जो हैं इनको देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गारमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो जो एक्सपोर्टर डायरेक्टली गारमेंट को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक तरह से डायरेक्ट एक्सपोर्टर है, जबकि जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है वो है जिससे वो लोग उसके जो है उस गारमेंट में जो आपके आपके बटन्स और जिप्स और जो दूसरी सब्सिडीज उसमें इस्तेमाल होती हैं वो उसके अंदर वो इस्तेमाल करते हैं, वो उनसे परचेज करते हैं। फिर पास गारमेंट इंडस्ट्री जो है बजाय खुद इस उसको मैन्युफैक्चर करने के सब क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इसको कहीं और से मैन्युफैक्चर क्या नाम है करवाती हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस वक्त ये दो एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी है जो कि टेक्सटाइल के अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जो सारा इसका बेनिफिट है अगर कोई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर को ज्यादा है बनस्बत इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर के। यानी अगर मैं आपको मिसाल दूं कि डायरेक्ट एक्सपोर्टर को जो इस वक्त यूटिलिटीज की जो है वो रिड्यूस रेट के ऊपर यूटिलिटी उसके लिए मौजूद है, वो रिड्यूस रेट के ऊपर यूटिलिटी इस्तेमाल करता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट है उसके ऊपर रेट वही है जो कि आम इंडस्ट्री के ऊपर है। तो सबसे बड़ा जो इसमें एक और लूजिंग सेक्टर है वो टेक्सटाइल का है। फिर अगर हम अगले सेक्टर की इसमें बात करें वो है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के अंदर जो जनरल सेल्स टैक्स है वो तमाम फर्टिलाइजर के ऊपर जो है वो उम्मीद यही थी कि शायद रिड्यूस कर दिया जाएगा, जो कि 2% है, मगर वो उसको जो है 2% पे ही मेंटेन रखा गया है। और जो है इसके अलावा जो आपकी जो फीड जो इनपुट है गैस और फॉस्फोरिक एसिड जो कि एक तरह से रॉ मटेरियल है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, उसके ऊपर जो है वो जो आपकी जनरल सेल्स टैक्स जो परसेंटेज वो बेसिकली 5% ही रखी गई है, इसको भी रिड्यूस नहीं हुआ। फिर अगला जो आपका जो है सेक्टर जिसने के इसमें लूज किया है वो है आपका ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला सेक्टर, जिसे हम ये बेवरेजेस इसमें कहते हैं। बेसिकली हुआ ये कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं पाकिस्तान में उन पे 25% एफईडी जो है वो इम्पोज हो गया इस बजट के थ्रू। इसकी वजह से आपकी जितनी भी जो हैं ड्रिंक्स हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं उनकी प्राइसेस में 25% एक डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वो मेन सेक्टर्स हैं जिसने मेरे ओपिनियन में इस बजट में जो है बहुत यानी कि यूं समझे जिनको इस बजट में नुकसान हुआ है। अब हम आते हैं विनर्स की जानिब के किस सेक्टर ने इसमें कुछ ना कुछ उसको मिला है इस बजट के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो एक तो है हमारा क्या मैं सीमेंट सेक्टर, जिससे मेरा भी एक तरह से रिलेशनशिप है। इस सीमेंट सेक्टर के अंदर बेसिकली जो है वो एफईडी जो है वो पर किलोग्राम जो है वो 0.25 रिड्यूस हो गई है, ₹0.25 को पर किलोग्राम इसको रिड्यूस कर दिया गया है। यानी अब जो है वो पहले जो है वो ₹15 था और अब इसको ₹12.5 पर बैग के ऊपर इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। बेसिक इसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिन पहले हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन जो हमारा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ह्यूज पैकेज का ऐलान किया था तकरीबन 2 महीने 2 मंथ्स बैक,
और उस कंस्ट्रक्शन उसी लाइन के अंदर इन्होंने सीमेंट के प्राइस को भी रिड्यूस किया है ताकि लोग जो हैं इस एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा आएँ और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब जाएं, जो हुकूमत का मेन जो है इसमें मोटिव है। फिर जो इसमें एक और सेक्टर है हमारा जिसको फायदा वो हमारा है ये केमिकल सेक्टर। बेसिकली जो हमारे दो इसमें मेन केमिकल्स हैं जिसमें इथाइलिन और ये पैराजाइलिन है, जिसके अंदर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी इम्पोज थी, जिसको इस बजट के थ्रू अब खत्म कर दिया गया है। तो ये बेसिकली जिससे इन मेन केमिकल्स की जो प्राइस है वो रिड्यूस होगी, जो कि मेन हुकूमत का मकसद है। फिर जो हमारा एक और है विनर इसमें है कंज्यूमर सेक्शन, यानी जो एडिबल ऑयल्स और जो हमारी जो सीड्स हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पिछले साल मौजूद थी, जिसको के खत्म कर दिया गया है। इसको अब इसको एग्जेम्पशन में डाल दिया गया है, यानी किसको एडिशनल कस्टम्स जो ड्यूटी थी एडिबल ऑयल और कैम सीड्स के ऊपर। इसके अलावा जो फूड की पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर भी कस्टम्स ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा रेडी टू यूज फूड सप्लीमेंट्स जो हैं, जिसमें के बच्चों के जो है ज्यादातर जो हमारे पास सीरियल्स आते हैं उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा रिलीफ मिला है हमारी कंज्यूमर सेक्शन को, कि जो एडिबल ऑयल, सीड्स और फूड ये पैकेजिंग इंडस्ट्री और इसके अलावा जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी को अबॉलिश या एग्जेम्प्ट उसको कम्यूल कर दिया गया है। फिर हमारी तीसरी चीज आती है जो कि हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स। यहाँ बेसिकली क्या हुआ है कि जो हमारे पास पहले जो फॉरेन रेमिटेंस आती थी उसके ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स इम्पोज था, तो इसके अंदर अब ये इंसेंटिव डाला गया है कि अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू फॉरेन रेमिटेंस को अपने मुल्क के अंदर मंगाते हैं तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स को खत्म कर दिया गया है, जो कि एक इंसेंटिव है उन लोगों के लिए जो फॉरेन रेमिटेंस में हमारे बैंक्स के थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में लेकर आते हैं। इसके अलावा जो है वो मेन जो ये हुआ है कि जो फिर खुद हुकूमत ने अपनी जो इंटरनल बोरोइंग थी उसको रिड्यूस कर दिया है 916 बिलियन पे, क्योंकि पहले जो है बेसिकली गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा बोरो करती रही हैं इंटरनल बैंक्स के, जिससे बैंक्स की जो फाइनेंशियल जो फिजिबिलिटी है उसके ऊपर बहुत असर होता है। तो अब उसके ऊपर जो है वो रिड्यूस कर दिया है गया, उसको 960 बिलियन पे उन्होंने फिक्स कर दिया कि उससे ज्यादा लोन या इससे ज्यादा बोरिंग नहीं लेंगे फ्रॉम इंटरनल बैंकिंग सिस्टम। फिर हम आते हैं स्टील के ऊपर। स्टील के ऊपर बेसिकली हुआ ये कि जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको 12.5% और 17.5% जो कि पिछले साल थी उसको रिड्यूस करके 6% और 11% पे लेके आ गए हैं ऑन हॉट रोल्ड कॉइल्स HRC, जो कि आयरन और स्टील से बनते हैं। बेसिकली ये जो HRCs हैं ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये भी अगर हम देखें तो ये जो इंसेंटिव दिया है कमर्शियल अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, तो ये उसके अंदर उसी का एक हिस्सा है, उन्हीं स्टेप्स का इसका हम हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा जो स्क्रैप है, अगर आप स्क्रैप बेचते हैं तो उसके बाद जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है उसको 0% पे लेके आ गए। वो स्क्रैप जो कि स्टील से जिसकी रिलेशनशिप है, जो कि स्टील से बनता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर हम आए तो उसमें 30 बिलियन जो है उसकी सब्सिडीज का ऐलान हुआ है, जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग जो है सोसाइटी के अंदर हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इसमें सब्सिडी खुद देगी, ताकि इसके अंदर जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उसको इंक्रीज हो और इससे जो है वो कंस्ट्रक्शन की जो डिमांड है उसके अंदर इंक्रीज हो। तो ये वो सेक्टर्स हैं मेन जिसके अंदर मेरे ख्याल में कि जो कि मेन लूजर्स हैं और मेन विनर्स हैं इस बजट के थ्रू। जी, over to you, Vaspa. Right. Thank you, Faisal sir, for such a detailed answer. I think this was very important to know because a lot of people from the graduating batch are right now, searching for employment opportunities or they want to start a new business. So I would just like to add that it's very important that you should know which industries are benefiting and which industries are at the losing side during this crisis and with this budget. Now I would like to move to Imtiaz sir, and my question is that since आपका trading side पे बहुत experience रह चुका है, so I would like to know how this budget is favorable for the trade sector, and are there any sort of measures or relief
introduced for imports and export? Thank you very much. Very good question. Vaswa, would like to say ये आप अभी जो विनिंग या बेनिफिटिंग सेक्टर की बात करें, इसमें मैं फैसल साहब की बात को पहले सेकंड करना चाहूँगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो अकेली नहीं है, इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए था, जिसमें मार्बल्स है, सैनिटरी है और दूसरे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। तो ये तमाम मिल के बनते हैं और सिर्फ एक इंडस्ट्री जो है वो अपने तौर पे नहीं चल सकती जब तक आप उससे अलाइड इंडस्ट्री को भी किसी किस्म का रिलीफ ना दें। इस वक्त जो सबसे बड़ा शॉर्टफॉल है वो हमारे पास फाइनेंस का है। बिजनेसेस इस वक्त जो इफेक्ट हुए हैं उनकी सेल्स इफेक्ट हो गई हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि करंटली बड़ी न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल, आपको जो है वो दुनिया से भी, कि जहां बैंक्रप्सीज फाइल की जा रही हैं। रिसेंटली अभी जो है वो काफ़ी सारे जो है वो बड़े बड़े नेम्स आ रहे हैं और आई डोंट नो कितनी इसमें हकीकत है। कल पिज़्ज़ा हट के हवाले से भी एक न्यूज़ जो है वो चल रही थी, यूएस में उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में भी सामने आ रही हैं और हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट ये किया था कि आप फाइनेंसिंग के हवाले से भी एक पोर्शन रखें एसएमईज के लिए ताकि वो आगे सस्टेन कर सकें। हम कंपेयर जब करते हैं यूएस से या यूरोपियन कंट्रीज से, वहाँ पे उन्होंने अपनी एसएमईज को बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ दिया और उन्होंने उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की विदाउट एनी कंडीशंस और इमिडिएटली उनको जो है वो सर्वाइवल के लिए हर तरीके की असिस्टेंस दी, जिसमें उन्होंने एक बड़े बड़े पोर्शंस फाइनेंस के रखे। चूंकि हम फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है इस वक्त, पाकिस्तान हमारा कंट्री जो है, तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक पोर्शन रखा था एसएमईज के लिए और इट वाज अराउंड आई थिंक 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो एसएमईज की रिलीफ के लिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने उसकी तरफ फोकस नहीं किया और वो हम उस जो है वो बेनिफिट को लेने से रह गए और वो बेनिफिट जो है अफ्रीकन कंट्रीज में और डिफरेंट कंट्रीज में वो चले गया और आई थिंक इंडिया ने भी सब पोर्शन उसमें से लिया है। लेकिन ये इसकी इस वक्त अशद ज़रूरत थी ताकि हम जो है वो चीज़ों को ले सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा हर सूरत। ये इस वक्त हमारी अशद ज़रूरत है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें लोकली मैन्युफैक्चर करनी है, जो कि मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल इक्विपमेंट हो गए और इसके अलावा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें भी, और एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड। तो हम इसमें जो चीज़ें देख रहे हैं, हमें इसमें जो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बड़ी अशद ज़रूरत थी ताकि हम कुछ टैक्सेस ऐसे रिलीफ देते हैं कि दुनिया इस तरफ आए। जब लोग देख रहे हैं कहीं मूव होने के लिए, क्योंकि अब चाइना से लोग घबरा रहे हैं, तो हमें लोगों को यहाँ लाने के लिए कोई ना कोई ऐसा रिलीफ देना चाहिए था कि उनको नजर आता कि जी पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो एक ये अपॉर्चुनिटी है। हम सिर्फ सीपैक के पीछे रह गए हैं और गवर्नमेंट सीपैक को भी सही से जो है वो नहीं कोप अप कर पा रही। हमें इससे रेलिवेंट और भी चीज़ें देखनी चाहिए क्योंकि हम जियोग्राफिकली इतनी आइडियल लोकेशन पे हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हम पे डिपेंड कर रहे हैं। अफगानिस्तान ले लें, ईरान ले लें, पीछे जितने सीआईएस कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब हम पे रिलाई करते हैं और बहुत सारी कमोडिटीज़, बहुत सारे आइटम्स हमारे यहाँ से रूट करते हुए जो है वो तक जाते हैं। तो बीइंग रिलेटेड टू ट्रेड सेक्टर, जो आपका मेन क्वेश्चन है, हम कोई ऐसा रिलीफ नहीं देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मिला हो। जो कोई कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडीज कहीं अनाउंस की गई हैं, लेकिन वो इतना लेंदी और इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है कि उसमें बिजनेसेस जाना नहीं चाहते और बड़ी माइनर सी सब्सिडीज होती हैं। जैसे आपने भी देखा कि ये जो है इन्होंने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स कुछ लगाए हुए हैं या चला रहे हैं, उसमें जो है वो 12,000 रुपये अगर किसी को मिल रहे हैं तो वो कैसे 3 महीने तक सर्वाइवल करेगा। तो सिमिलर अगर आप इंडस्ट्री को जो है वो इस तरह की किसी सब्सिडी या इसी क्लेम पे लगा देंगे जिसमें जो है वो आपके जो है वो अंडर द टेबल आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये तो हम करप्शन की तरफ चले जाएंगे बजाय इसके कि हम अपना जो है आगे सर्वाइवल की तरफ जाएं और आगे जो है वो हम चीज़ें अपनी लेके चलें। इस वक्त हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमें अपने टैक्सेस को एक नॉर्मल रेंज में रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल अब दी आपको और दूंगा कि जो है यूएई के अंदर आप अगर देखें तो वहाँ टैक्सेस नहीं है, इंडस्ट्री पे, बिजनेसेस पे टैक्सेस नहीं है। आप वहाँ पे उन्होंने फ्री जोन बनाए हुए हैं हर एरिया के अंदर, फुजीरा में, जबल अली में, आगे पीछे
सब फ्री जोन बने हुए हैं और दुनिया भर से कंपनीज आती हैं, वहाँ काम कर रही हैं और दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस। वो फ्री स्टाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिल रही है और वहाँ की वहाँ के लोग हैं, आवाम है, उनको जो है वो तमाम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। वो आप गाड़ियों से ले लें, वो आप और किसी लग्जरी आइटम्स से ले लें, वो तमाम चीज़ें उनको टैक्सेस फ्री जो है वो अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से हम पाकिस्तान को भी जो है वो इसी उसमें लेके जाएं, जहां हमारी पॉपुलेशन अगर 2% उसका टैक्स देती है, तो हम क्यों उन्हीं को जो है वो हर सूरत टारगेट करते हैं और उन्हीं को स्क्रू करते चले जाते हैं। ना कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जो है वो तमाम लोगों को मैसर मौके दें कि हाँ जी, आप जो है यहाँ बिजनेसेस करें और बिजनेसेस में आपको एक रीजनेबल अमाउंट का टैक्स लगेगा और वो रीजनेबल अमाउंट का टैक्स डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट तक जाए। उसमें ये जितने जो है वो मैनुअल प्रोसीजर्स हैं इनको अनफॉलो किया जाए और तमाम चीज़ें ऑनलाइन कर दी जाए, तो ये बड़ा रिलीफ एक हमारे लिए मिल सकता है। और हमें एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ानी है अपनी, तो हमें इन तमाम चीज़ों को एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा और जिसमें क्रूशियल चीज़ यही है कि इस वक्त फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है किसी भी एसएमईज के लिए या जो है तमाम सेक्टर्स के लिए कि जो इस कोविड की पेंडेमिक के सूरत हाल में अपने आप को किसी तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो विद इन 6 मंथ या तो गवर्नमेंट को जो है वो मिनी बजट लाना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी अ डिजास्टर। अभी अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ें सामने आना शुरू हो रही हैं और जिसका जो है इम्पैक्ट अभी आप विद इन 6 मंथ्स देखेंगे कि एक बड़ा डिजास्टर है ये। दैट्स इट। थैंक यू। Right, अभी हमारे पास एक just question आया है. Imtiaz sir, can you just ask this question? Does this budget affect only large scale businesses or SMCs as well? ऑब्वियसली जी, एसएमई से एक जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें और ये लार्ज स्केल भी जा रही हैं। आप देखें रिसेंटली तमाम इंडस्ट्री इस वक्त लॉकडाउन की वजह से इतने अफेक्टेड है, कहीं भी कोई काम नहीं चल रहा है। मॉल्स अभी रिसेंटली खुलना शुरू हुए हैं, लेकिन उससे रेलेवेंट यस्टरडे भी एक हमारे दोस्त हैं, वो डिज़ाइनर हैं और उनकी एक बड़ी इंडस्ट्री थी, तो वो उस हवाले से काम कर रहे थे। तो उनका बिजनेस भी इस वक्त बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि टेक्सटाइल की हमारी मेजर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस के लिए, और यूएस में जो है वो आपको पता है कि इस वक्त एक वहाँ भी एक बहरान है और वहाँ पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी है वो बैंक्रप्सीज फाइल कर रही हैं। तो जितनी इस वक्त भी करंट जो हमारी एलसीज आई भी थी तमाम ममालिक से, बैरूनी ममालिक से, इंटरनेशनल कंट्री से, वो इस वक्त यूटिलाइज नहीं हो रही हैं और उनके बैंक्स ने भी कह दिया है कि जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ किसी भी वक्त कोई भी कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी फाइल कर देती है और तो उस वजह से हम जो है वो आपको किसी किस्म की गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि एलसीज जो है उनका एक टाइम पीरियड होता है रियलाइज होने का उसकी पेमेंट का। तो हम इस वजह से शिपमेंट्स भी नहीं कर पा रहे हैं टाइमली कि हम वो शिपमेंट्स कर दें और पता चले कि इन द वे 40 डेज का ट्रांजिट होता है बाई सी कोई भी शिपमेंट जो पहुंचती है यूरोप या यूएस के लिए, और इन द मीन वाइल अगर वो कंपनी जो है बैंक्रप्सी फाइल कर दे तो हम किधर स्टैंड करेंगे। ये बड़ी इंडस्ट्रीज भी इसकी वजह से सर्वाइव कर रही हैं और एसएमईज तो मतलब वो तो खत्म हो जाएंगी। बड़ी इंडस्ट्रीज चलें वो किसी छोटे पैमाने पे कोई काम शायद कर सकें, लेकिन एसएमईज जब अगर खत्म हो जाएंगी तो वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकती। और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एसएमईज को इसीलिए फोकस किया जाए क्योंकि ये किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी मुल्क का जो है वो सबसे अहम हिस्सा होती है। जिस तरह चाइना की एग्जांपल हमारे पास है या इंडिया की एग्जांपल हमारे पास, एसएमईज का होना, उनको सस्टेन करना, उनका चलना, उनसे बहुत सारे लोग लिंकअप होते हैं, उनका चलना जरूरी है। All right. वास्तव में इसमें अंदर अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो Yeah, definitely. आई डेफिनेटली एग्री विद इम्तियाज साहब। देखें मेन जो इस वक्त, जैसा कि मैंने अभी अर्ज था किया कि मेन जो फोकस है वो ये है कि मैं अग्री करता हूँ इम्तियाज साहब से कि 6 मंथ्स जो हैं उसमें कोई प्लानिंग इस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं है एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न, बिकॉज 6 मंथ्स तक सिचुएशन जो है वो ये देखी जाएगी कि हम इस पेंडेमिक से कैसे निकल पाते हैं। एस्टिमेशन जो है वो यही है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, जो एस्टिमेट्स है वो ये है कि पाकिस्तान से ये पेंडेमिक जनवरी तक खत्म तो हो जाएगा, मगर बाय दैट टाइम WHO और इसके अलावा जो इंपीरियल इंपीरियल ब्रिटिश कॉलेज है यूके में, उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर जो एस्टिमेट्स है वो ये है कि तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन लोग जो हैं पाकिस्तान में वो
मौत का शिकार हो जाएंगे आफ्टर दिस सिचुएशन, यानी वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आई थिंक 6 मंथ्स जो हैं वो उसमें कोई इकोनॉमिकल रिवाइवल इस वक्त हमारे सामने नहीं है। दूसरी बात ये है कि एसएमसीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इस पे इफेक्ट हुए हैं लार्ज स्केल बिजनेसेस के बनिस्बत। उसकी वजह ये है कि एसएमसीज के ऊपर एसएमसी के पास कोई सेविंग्स नहीं है, कोई उसका इन्वेस्टमेंट इतनी लार्ज नहीं है कि वो अपने बिजनेस को सपोर्टिंग करने में इन हालात में उनको सपोर्ट करें या सस्टेन करें। इसकी वजह से ज्यादातर जो एसएफसीज है वो हम देख रहे हैं कि या तो क्लोज हो गई हैं या वो लॉसेस में हैं और क्लोज होने वाली हैं या बैंकरप्ट हो गई हैं। अगर हम यूएसए में जायजा लें तो बहुत सारी जो हमारे रिटेल स्टोर्स थे जो यूएसए में थे वो अब क्लोज हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं अगर वो सर्वाइव हो रहे हैं या अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं तो बेसिकली अपनी सेविंग्स या फाइनेंशियल जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर इस वक्त वो सस्टेन कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। लेकिन जो एसएमसीज हैं उनके लिए हालात बहुत खराब हैं और इस बजट के अंदर आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर कि जो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई टैक्सेस के अंदर एग्जाम्पशन, कोई कंसीडरेबल एग्जाम्पशन मौजूद नहीं है। ऑल्दो हुकूमत ने ये कहा है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि देयर आर नो न्यू टैक्सेस बट देयर इज नो चेंज इन द टैक्स स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो जब टैक्सेस में रिलीफ नहीं है तो एसएमसीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी। तो यूटिलिटीज में भी उनको रिलीफ नहीं है। यूटिलिटीज में भी जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि जी वो 3 महीने या 4 महीने जो है वो यूटिलिटीज के बिल ना दें, बट जो चीज हुकूमत नहीं कर पा रही और जो कि अलार्मिंग वो ये है कि ये तमाम बिल्स एड अप होते जा रहे हैं। यानी तमाम यूटिलिटीज कंपनी जो है इन्होंने इस बिल को वेव नहीं किया बल्कि वो कंपाउंड करती जा रही हैं। यानी अभी बिल नहीं ले रहे लेकिन 4 महीने बाद, लेट्स से 5 मंथ्स बाद वो बिल्स जो हैं वो एड अप होके आएंगे और ये हो रहा है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। एसएमसीज जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं और अल्लाह करे इंशाल्लाह हालात कुछ ऐसे हों, बट एट प्रेजेंट देयर आर नो रिलीफ मेजर्स फॉर एसएमसीज, क्योंकि बेसिकली हुकूमत के पास में रेवेन्यू नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे पास एक चार्ट है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत की मेजर स्पेंडिंग जो है वो बेसिकली इस वक्त जो है वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट की क्या नाम है रिफंड में जा रहा है। यानी अब अबाउट 50% जब जा रहा है तो हुकूमत के पास कोई रेवेन्यू है तो वो क्या उसमें रिलीफ देगी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। Yeah, I think if we can share the screen, you can let our participants see that chart. जी, ये जो है ओके, would you please let me share the screen? Please give me 1 minute. जी, जी बाबर, Yes sir, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप कोई प्रेजेंट जी, अगर आपके सामने ये आपको विजिबल होगी स्क्रीन, अगर हम इसमें मेजर जो एक्सपेंडिचर्स हैं बजट के उसका अगर हम एट अ ग्लांस देख सकें इस चार्ट के अंदर, तो व्हाट वी हैव कि 49% वुड बी 49% ऑफ द एक्सपेंडिचर वुड बी इन इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी जो फॉरेन लोन पेमेंट्स है आपकी, जो कि तकरीबन 2946 बिलियन रुपीस बनता है। फिर आपका जो सेकंड है वो आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जिसमें 650 बिलियन है, और डिफेंस में 1290 मिलियन जो कि 21% है, विच इज हाईएस्ट आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट्स। Defense is something which in my opinion cannot be ignored. उसमें एक्सपेंडिचर अगर इतना है तो मेरा जाती ख्याल ये है कि उतना ही रहेगा और रिड्यूस नहीं होगा। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, हमारे रीजन में, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर हमारे पास जो है वो बेसिकली जो आता है डिफेंस के बाद, जैसे मैंने कहा आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। फिर आपके जो हैं वो आपके सिविल एक्सपेंडिचर्स हैं कि सिविल गवर्नमेंट को रनिंग के लिए जो उनकी सैलरीज हैं और एक्सपेंडिचर्स ओवरहेड्स वगैरह, उसके ऊपर जो है वो तकरीबन 476 बिलियन है। 470 बिलियन जो है वो आपकी जो पेंशन्स हैं उसमें जाएगा। और फिर आपका जो है वो
तकरीबन सब्सिडीज में जो है वो जाएगा 3%, जो कि 210 बिलियन है। तो इस चार्ट को अगर हम जायजा लें तो मेन जो दो इसके अंदर मेन एक्सपेंडिचर्स के हेड्स हैं, दैट इज डिफेंस एंड इंटरेस्ट पेमेंट। उस सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट है उसमें 650 मिलियन रखा तो है, बट आई डोंट थिंक 650 बिलियन जो है वो स्पेंड होगा। that is what my calculation says कि 650 बिलियन जो है वो रखा गया है, it is quite a huge amount as compared to last year budget, but जो है फिर भी जो है आप ये देख सकते हैं कि हुकूमत का बेसिकली कोई इस वक्त पैसा नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर के में डेवलप में इसको खत्म करे, इसके ऊपर स्पेंड करे। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। वालेकुम जी। अच्छा, ये जो भी बातें हुई थी ना अभी, जो फैसल साहब ने की है और इम्तियाज साहब ने की है, उस बात में थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। जी आप सब कर सकते हैं आप। अच्छा, ये जो हमने जो इस बजट में जो मेजर जो इफेक्ट आया हुआ है, जो हमारे पास जो 5 जीरो डेटा सेक्टर थे ना, लेदर है, टेक्सटाइल है, कारपेट्स है और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे और स्पोर्ट्स गुड्स, तो ये जो 5 सेक्टर ही समझने से बड़ा सहारा दिया हुआ था और ये डायरेक्ट एक्सपोर्टर थे, इनके साथ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर भी थे। तो अभी ये हुआ है कि जो डायरेक्ट जो एक्सपोर्टर है उनको तो किसी तरह बेनिफिट्स तो मिल रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है जो इनके लिए काम कर रहे होते हैं उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है इस वक्त। तो अभी जो लूजर्स की जो बात कर रहे थे उन्हें यही याद है, क्योंकि इन्होंने जो पहले जो ड्यूटी पेमेंट करते थे अभी उनसे तकरीबन 5 से 6% परसेंटेज ज़्यादा इनको ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ी है चीज़ों पे। अच्छा, साहब ने भी कहा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो स्क्रैप पे गवर्नमेंट ने ड्यूटी में छूट दी है, आरडी पे बिल्कुल दिया, लेकिन इसकी जो बारस उन्होंने ये किया कि इसकी जो वैल्यू होती है, कस्टमर की वैल्यू फिक्स करता है कि भाई जो स्क्रैप पाकिस्तान में आ रहा है उसका क्या रेट होना चाहिए, किस पे वो ड्यूटी पेमेंट करेगा, यानी असेसमेंट वैल्यू। तो पिछला जो इसका असेसमेंट वैल्यू था $390 पर टन का था उन्होंने, ठीक है। जब से ये बजट आया इन्होंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी है, तकरीबन $430 पर टन कर दिया, यानी $50 या $40 पर टन इसको इन्होंने यहाँ से बढ़ा दिया। तो जो बजट जो यही इंजीनियरिंग बजट होती है कि आपको बताया कुछ जाता है और होता कुछ है, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। जो बंदा पहले ड्यूटी अगर 100 रुपीज़ दे रहा था, अभी उसके ऊपर ड्यूटी जो है ना 110 पड़ जाएगा, और प्लस जो डे बाई डे एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है उससे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो जो डायरेक्ट जो इम्पोर्ट जो एक्सपोर्टर है उसके मुश्किलात तो है, उसके साथ जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात है सब। और गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसी सब जो है जो कुछ वो कर भी नहीं सकते। अगर आपको याद होगा, मैं थोड़ा पीछे चले जाऊँ, 1998 जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी हमारे पास, तो उस वक्त उठा के देख लें पोजीशन क्या था। जब हमने एटमी जो धमाका किया या पावर बने, उसके बाद से हमारा ये फॉल आगे डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे इस रीजन पे बांग्लादेश ऊपर गया। अभी जो बांग्लादेश की मिसाल देते हैं थोड़ा ये भी जान लें कि बांग्लादेश के पास क्या चीज़ था, वो तो कॉटन प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, फिर भी वो ऊपर चले गए। इसलिए गए कि जब से हमने ये जो एटॉमिक जो पावर बने, तो जितने भी एग्जम्पशन थे, जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, लोगों ने पूरी यूरोप यूनियन या अमेरिका ने बांग्लादेश से कर दिया। तो काफ़ी इन्वेस्टर जो पाकिस्तान से थे और पूरी दुनिया से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया बांग्लादेश में जाके। तो इस वजह से बांग्लादेश ऊपर जा रहा है। और पाकिस्तान अभी मुश्किल ही है कि हमारे साथ कोई सिर्फ चाइना के अलावा और श्रीलंका के अलावा हमारे पास कोई एक ट्रेड पार्टनर नहीं है इस वक्त। पूरी यूरोपियन यूनियन पे हमारे साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है और क्या अमेरिका के साथ भी नहीं है। तो जो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उनको जो अगर बांग्लादेश वो जो टी शर्ट वो अमेरिका जाता है तो सिर्फ 0% ड्यूटी है, और वो टी शर्ट अगर पाकिस्तान से जा रहा होता है अमेरिका तो 10% ड्यूटी है। तो यही फर्क पड़ता है ड्यूटी के, जिस वजह से बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, उनकी जीडीपी बढ़े, हमने नुकसान उठा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक बात होगी। और दूसरी बात मैं ये बता रहा था
कि जो जो रॉ मटेरियल के हवाले से जो इसमें जो छूट दी गई है ना जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उस पर ये है कि आपको अभी जैसे मैं अभी बता दूं प्राइवेट सेक्टर पे जितने भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, ये बहरिया है, उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो इनके जो जितने भी दरवाजे खिड़की अलमारी सब चाइना से ही इम्पोर्ट है। पाकिस्तान में कोई इसकी इंडस्ट्री है ही नहीं, ना इतने बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर एक कोरियन कंपनी से हमारी बात हुई थी, उनको हम लोग लेकर भी आए थे, विजिट भी कराया था कि भाई अब पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाए और ये जो मेलामाइन पार्टिकल बोर्ड प्रोड्यूस करे यहाँ पे। ये जो प्राइवेट सेक्टर पे जो हाउसिंग सोसाइटी है उनको देते हैं आपको। लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ है कि जो इम्तियाज साहब ने भी बताया है, FDI के तहत जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो जो टैक्सेस जो टैरिफ रेट्स जो हमारे इतने ज़्यादा हैं कि वो उन्होंने पूरा सेटअप मतलब बनाने वाले ही थे। हमने ऑफिस भी ले लिया था इनके लिए, क्लिफ्टन वगैरह पे सर्वे कराया था। लेकिन जब ये टैरिफ रेट में इतना इजाफा हुआ है और खासकर एक्सचेंज रेट पे, तो ये कंपनी ने मना कर दिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से। ये सारी ये बहुत ही फर्क पड़ रहा है हमारे। तो अभी जो हालात चल रहे, जो पेंडेमिक जो चला हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई बेहतरी आने वाली है। तकरीबन 6 या 7 महीने में देखना पड़ेगा हमें। तो ये सर्वाइवल का टाइम है, वो बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, लेकिन ये सर्वाइवल का टाइम है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो बिजनेस कर रहे हो और जो कारोबार कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको एक और मुश्किलात आती है कि जो पाकिस्तान पे जब से हमारा पाकिस्तान तकरीबन 70 ईयर्स हो गया हमें बने, आज तक हमारे पास कोई शिपिंग लॉ नहीं है। ये बड़ी ही अलर्मिंग सिचुएशन है। जितनी भी शिपिंग लाइनें हैं उनकी एक जो व्हाइट कॉलर ब्लैक बिलिंग चल रही है। उस सिलसिले में अगर इम्तियाज साहब कुछ शिपिंग लाइन के हवाले से अगर इम्तियाज साहब कुछ चाहें तो हमें कुछ बता सकते हैं। जी इम्तियाज साहब। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। शिपिंग लाइंस का तो आपको पता है कि इस वक्त उनके पास भी बहरान की सूरत हाल है दुनिया भर में, क्योंकि शिपमेंट्स इस वक्त हर्ट हुई हुई है। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तमाम ममालिक की इस वक्त हर्ट हुई हुई हैं और 25 to 30% सिर्फ एक्सपोर्ट्स रह गई हैं दुनिया भर में। उसकी मेन वजह ये है कि जैसा कि आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री तमाम बंद है, टूरिज्म इंडस्ट्री बंद है। जो कंजम्पशंस थी वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो बड़ी लो हो गई है। उसकी वजह ये है कि लोग एसेंशियल आइटम्स की तरफ जा रहे हैं, बाइंग की तरफ, और जितने लग्जरी आइटम्स थे वो तमाम उनकी जो है वो इम्पोर्ट्स हॉल्ट कर दी गई हैं। और इसके अलावा ममालिक भी अपने तौर पे जो है मेजर्स ले रहे हैं, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्ट्स जो है वो उनको डिस्करेज करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी करंटली भी हमारी सूरत हाल कुछ चल रही थी, तुर्की के साथ हम बिजनेस रिलेशन में। उन्होंने यस्टरडे मेरी एक बात हो रही थी, एक फिजिबिलिटी हमारी बनी हुई थी, तो उसमें उन्होंने अपने टैक्सेस रेट कर दिए तुर्की जैसे मुल्क ने। तो इसी तरह यूरोपियन ममालिक में भी यही सूरत हाल है। अमेरिका ने तो ऑलरेडी मेजर्स पहले से लेना शुरू कर दिए थे, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि चाइना को उन्होंने जो है वो डिस्करेज किया, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, ड्यूटी उसमें उन्होंने रेज कर दी। तो जब एक्सपोर्ट्स ही नहीं होंगी, इम्पोर्ट्स ही नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली शिपिंग लाइन्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। और हम तकरीबन लास्ट 2 साल से ये देख रहे थे, इस वक्त जो फ्रेट्स जो चल रहे थे, सी फ्रेट्स जो चल रहे थे, वो बिल्कुल लोअर एक साइड पे चल रहे थे, और इतना कभी हमने नहीं देखा कि इतने लो साइड पे हमें फ्रेट्स मिले हो। तो मेरे ख्याल से अभी वो भी एक सर्वाइविंग की सूरत हाल में शिपिंग कंपनीज। पाकिस्तान चूंकि हमारे पास शिपिंग लाइंस है ही नहीं अपनी, तो हमें कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसी उसमें अगर हम देखें, अगर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, एयरलाइंस के हवाले से, वहाँ भी हमें एक बड़ा सेटबैक मिला है और एयरलाइंस भी इफेक्ट हो गई हैं। बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, कतर एयरवेज है, एमिरेट्स है, और वो आपने देखा है कि वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ भी इसी तरह से जो है वो एक बहरान की सी सूरत हाल है। तो ये तमाम चीज़ें अभी टाइम लगेगा मतलब रिवाइवल होते हुए, और हम इनको सपोर्ट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते बीइंग एक्सपोर्ट, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस या उनके जो है मामला इतने बढ़ गए हमें ये तमाम सूरत हाल में कि वो खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अभी मैं आपको करंटली एग्जांपल दूं, जिस तरह हम मैंगोज की एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के लिए, तो हमारा जो लास्ट ईयर तक मैक्सिमम फ्रेट था वो अराउंड 200 समथिंग था, 200 रुपीज अ केजी, और
अब सूरत हाल ये है कि अब स्टार्ट ही सिर्फ 550 रुपीज पर केजी के हवाले से रेट स्टार्ट हुआ। तो जब इतनी हायर साइड पे चले जाएंगे मामला, तो कैसे कोई बाइंग पावर रखेगा और कैसे जो है उनको एक वॉल्यूम बिजनेस मिलेगा और कैसे वो सरवाइव करेंगे। तो ये एक बड़ी जो है वो खतरनाक सूरत हाल है, और जिसमें जो है वो अभी हम 6 महीने तो ऑब्वियसली कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेजर्स हमें अभी से लेने होंगे और हमें इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये एक पेंडेमिक की सूरत हाल इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती प्रॉपर इसकी। तो हमें उसके लिहाज से ही तमाम अपने जो है वो मामलात को इम्प्रूव करना चाहिए लोकली भी। इसीलिए हम दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जोर इसीलिए दे रहे हैं कि हमें खुद कफील होना पड़ेगा पाकिस्तान जैसे मुल्क को। इस वक्त हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए अगर हम वीट इंपोर्ट के लिए जो है वो दे रहे हैं, कोटे दे रहे हैं, जो कि कभी नहीं होना चाहिए था और होता है, तो और इस तरह के मामलात करते हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं कि ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, ना हमारे पास एग्रीकल्चर है, और तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद हम क्यों और किन डायनामिक्स में और किस रोड मैप पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई टारगेट्स नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये तो हम वो चल रहे हैं कि मतलब आप एक आफत आ जाती है, फिर उसके बाद आप जो है वो कोई मेजर्स लेते हैं उस आफत से निपटने के लिए। तो हम तो मतलब डिफेंस की सूरत हाल में है, डिफेंसिव सिचुएशन में है। हम कोई मतलब फ्यूचर हमारी किसी किस्म की प्लानिंग नहीं हो रही, ना गवर्नमेंट साइड से और ना बिजनेस सेक्टर को जो है वो आगे लेके आ रहे हैं कि वो किसी किस्म की कोई मामला आगे चलाएं। आए दिन हमारे पास परेशानियां हैं, नए नए बहरान खड़े हो जाते हैं। दुनिया में फ्यूल जो है वो माइनस पे चले गया और हम यहाँ पे जो है वो फर्नेस ऑयल का रोना रो रहे हैं और ऑयल की प्राइसेस पे रो रहे हैं, लड़ रहे हैं कि जी हमारे पास ऑयल की प्राइसेस नहीं है। तो हमारे पास तो पता नहीं कौन अल्लाह ही चला रहा है ये मुल्क। तो हमारे पास तो जो है वो कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, जिसको हम विजनरी एक मामला कहते थे। मदद के साथ मैं किसी गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन कोई विजन होना चाहिए, कोई चीज क्लियर होनी चाहिए कि आवाम को पता चले कि हमने ये सख्तियां बर्दाश्त करनी है तो कब तक करनी है। आया हमें जो है वो इसमें मजीद साल 2 साल रहना है या इससे लंबे अरसे रहना है, और कब हमारा जो है वो एक प्रॉपर अच्छा टाइम स्टार्ट होगा और कब यहाँ पे जो है वो लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा, जिसके लिए लोग इंतजार करें। लेकिन सर मैं अच्छा रिक्वेस्ट करूंगा सारे पार्टिसिपेंट से, अगर जिनके लिए पॉसिबल है अपनी वीडियो अगर ऑन कर लें 5 मिनट के लिए, हम एक ग्रुप फोटो ले लें। थैंक यू जी। बस स्टार्ट कर सकते हैं जी। मेरा आबिद सर से क्वेश्चन है टैक्स के हवाले से कि मैं बस पढ़ रही थी कि एफबीआर को 4.9 बिलियन रुपीस का टारगेट दिया गया है टैक्स रेवेन्यू का। एंड जैसे फैसल सर ने कहा कि टैक्सेस इंक्रीज नहीं हुए हैं बट दे आर द सेम, बट I personally think जैसे लग्जरी आइटम्स उस पे they could have increased those taxes. Health sector का समझ आता है because health sector is going through a crisis and like you know they can't just increase the expenses on health sector. But I think दूसरे sectors पे especially जो luxury goods items है वहाँ पे taxes increase करे जा सकते थे because ये tax revenue बहुत unrealistic लग रहा है. What do you think? Is this achievable or not? अच्छा, मैं वासवा इससे पहले कि आबिद साहब कुछ वक्त, what I wanted to say that there is no change in the tax structure. Right. Okay. Tax structure was the same, but the estimated tax revenue has been increased. That's Okay. that's what I wanted to clarify. जी आबिद साहब प्लीज। देखिए पिछले साल जो हमारा जो टारगेट था 3,907 बिलियन रुपीस का टारगेट था टैक्स कलेक्शन, लेकिन इस दफा इन्होंने क्या किया तकरीबन 87 बिलियन ज्यादा इन्होंने टैक्स कलेक्शन कर लिया एफबीआर ने। 3,989 बिलियन इन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया इस दफा। ये बड़ी हैरत की बात है सबके लिए कि टारगेट की हालत भी इन्होंने पूरा किया। तो इसी तरह जब इन्होंने अभी जो टारगेट रखा है 4.9 बिलियन का, ये भी अचीवेबल है, इसलिए कि जो उन्होंने आपसे जो वादा किया भाई हमने टैक्स नहीं लगाए, मैं आपको बता दूं टैक्स बिल्कुल नहीं लगाया इन्होंने। नया टैक्स इन्होंने क्या किया, जो कि शेड्यूल्स जो थे, जो इस टैक्स को समझते हैं उनको पता है गवर्नमेंट के शेड्यूल होता है, जैसे कस्टम एक्ट के 1st शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है, सेल टैक्स के लिए 6th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे जो है ना 12th शेड्यूल है। ये जब फाइनेंस बिल आप पढ़ेंगे और इसका जो
इसकी जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसके टेबल सब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा टैक्स में कहाँ कहाँ जाके कितनी चेंजेस आ गई है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि जो पहले से टैक्स इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन जो वो क्या कहते हैं उसको, अंडर द शेडो काम हुआ है सारा ये, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट से भी आपको समझ नहीं आएगा। ये है जितने डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसके तहत ये बनते हैं। इन्होंने जैसे इनकम टैक्स है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, कस्टम्स है, ये सब ने अपने अपने टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं। ये तो एक हो गया इनका, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो रेट ऑफ ड्यूटी तो वही रखा है इन्होंने, लेकिन जो इसकी असेसमेंट वैल्यू है, जितने भी आइटम्स है, असेसमेंट वैल्यू में इन्होंने अभी इजाफा करना शुरू कर दिया। जैसे स्पोर्ट्स वेयर के लिए हमारे पास एक कपड़ा आता था लैक्रा, जो पाकिस्तान में नहीं बनता है, वो तकरीबन अगर चाइना से हम उसको परचेज करते $3.90 पर सेट, जो इसकी एक्चुअल प्राइस है। अभी इन्होंने कस्टम इसको फिक्स किया $6, यानी उसका तकरीबन समझ लिया डबल कर दिया उन्होंने वैल्यू। तो ड्यूटी अगर उसकी बेचारे की अगर 30 लाख बनती थी, वो ड्यूटी उसकी बन जाएगी तकरीबन 55 लाख रुपए। अभी इसका केस हम चल रहा है। इसी तरह उसके पीयू मटेरियल आता है, या सब स्पोर्ट्स गुड्स की बात कर रहा हूँ, या लाइनिंग मटेरियल्स आती है, जो भी चीज़ें हैं सब में इन्होंने इसके असेसमेंट वैल्यू को बढ़ा दिया। और जैसे धागा है, धागे पे इन्होंने इनकम टैक्स कम करके सेल टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक है ना। उसके बाद असेसमेंट में वैल्यू में उसकी चेंजिंग कर दी, उसके बाद उस पर आरडी लगा दी। ये सारे इस तरह करके इन्होंने 4.9 बिलियन से ज़्यादा ही वसूल कर लेना उससे। तो इस तरह इनका टारगेट पूरा हो जाएगा, कहते हैं फैसल भाई। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो बेचारा काम कर रहा है, जो इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट करता है। मैं खास कर बता दूं, पाकिस्तान तक तो 4 किस्म की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। एक जो रॉ मटेरियल है, वो बता दूं, रॉ मटेरियल सबको पता है क्या होता है। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हम उसको कहते हैं जो रॉ मटेरियल तो नहीं होता, लेकिन उससे ऊपर लेवल का होता है, जैसे धागा है, यार्न है, वो इंटरमीडिएट पे आता है। वो जरूरत है टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए चाहिए होता है। और तीसरा आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स उसको कहते हैं जो फिनिश प्रोडक्ट तो होता है, लेकिन किसी प्रोडक्ट बनाने के काम आता है, जैसे फैब्रिक है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ड्यूटी कम होनी चाहिए थी। और चौथी जाता है बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट है, जैसे बना बना चीज़ें, जैसे खाने चॉकलेट्स है, ये बिस्किट्स है, या गाड़ी है, या कोई टी शर्ट्स है, शर्ट्स है, तो उस पर भले आप ड्यूटी बढ़ा दें, लेकिन तीनों चीज़ों पे इसमें ड्यूटी को आपको नज़रसानी करनी चाहिए, इसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को। और खासकर जो वैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, कस्टम के जो वैल्यू में इजाफा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इसको भी फिलहाल रुके। क्योंकि जो अभी सभी बता रहे हैं, जितनी भी ट्रेड बॉडी है, सबने इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो वैल्यूएशन रूलिंग्स को जो है ना, फिलहाल इसको बंद किया जाए, ताकि पिछली रूलिंग्स पे ये काम किया जाए। इन्होंने लेकिन इस बात को नहीं, में दोबारा अभी काम शुरू हो चुका है, रोज़ाना एक नई रूलिंग आ रही है, और रोज़ाना यही काम हो रहा है। क्योंकि ये चलता रहेगा तकरीबन 3 महीने तक ये काम चलता रहेंगे। सारे जितने चीज़ों में ड्यूटी उन्होंने कम की, सब की रूलिंग बढ़ा के रूलिंग बढ़ा देंगे, उसके असेसमेंट वैल्यू बढ़ाएंगे, ताकि अगर पहले अगर आपको ड्यूटी को 10 रुपये भर रहे थे, आपको 15 रुपये भरना पड़ जाएगा। तो यही है, इसी तरह टारगेट पूरा होगा। पिछले जैसे मैंने बताया था, इनको 3,907 बिलियन का टारगेट था, लेकिन कस्टम ने इसको, FBI ने इसको 3,989 यानी 87 बिलियन रुपए से ज़्यादा टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया। तो यही इसी तरह ही करते हैं, जो अंडर द शेडो काम होता है। जी फैसल भाई। जी मैं आबिद साहब की बात को अगर मजीद आगे बढ़ाऊं, तो मैं दोबारा स्क्रीन के शेयरिंग ऑप्शन जो है ना, वो उसके ऊपर मैं जाना चाहूँगा कि मैं अगर उसको ब्रीफली टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसका मतलब है क्या बेसिकली। देखिए, हुआ ये है कि इस वक्त हमारा जो जी पिछले साल जो है, अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो बजट रेवेन्यू था, वो बेसिकली था हमारा 4963 बिलियन। सॉरी, जो इस साल का बजटेड है वो 4963 बिलियन है, और एक्सपेक्टेड जो है वो था 3908 पिछले साल का 2019-2020, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 27%, which is translated into 1000 billion rupees approximately। अभी जो 1000 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हमें मिलेंगे, इसमें से वो बता रहे हैं कि इनकम टैक्स में 419 मिलियन रुपीस मिलेंगे,
सेल्स टैक्स में एडिशनली 492 मिलियन मिलेंगे, कस्टम्स ड्यूटी में 94 मिलियन रुपीस मिलेंगे और एफईडी में 50 मिलियन रुपीस। तो ये जो 1055 का जो इंक्रीज है उसको हुकूमत ये सोच रही है, बल्कि हुकूमत ने एस्टिमेट किया है कि हमें इन सेक्शंस इन ट्रांजैक्शन से मिल जाएंगे। अब अगर हम देखें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो जहाँ से बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये इंक्रीज इनको मिलेगा। तो अगर आप इस स्लाइड को गौर से देखें तो इस स्लाइड के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कुछ चीजें इंडिकेट हुई हैं कि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट जिसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस एस्टिमेट को रखा गया है कि जी एक तो आपकी एग्रीकल्चर अच्छी होगी, आप जो है वो वीट एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे, एडिशनल रेवेन्यू वहां से जनरेट हो सकता है। फिर सबसे बड़ा जो हमारे पास इस वक्त आया है वो आपको जैसे मालूम होगा कि इस पेंडेमिक की वजह से एक पॉजिटिव जो चीज सामने आई हमारी इकोनॉमी में, वो ये कि हमने मास्क और ये जो हमारे प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है से हम ये पीपी का नाम देते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये हम एक्सपोर्ट करने के अब काबिल हो गए, जिसमें मास्क है, वो पूरा गाउन है और इसके अलावा सेफ्टी गॉगल्स हैं जो कि हमने अपने मुल्क में ना सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करने की जानिब जा रहे हैं। What is estimated is that we will be able to generate revenue from the export of these PPEs. इसके अलावा एक और सेक्टर जो है जो हमारा एक यूं समझें कि जिसपे अभी तक फोकस नहीं था लेकिन पिछले कुछ सालों में उसमें बहुत हद तक इंक्रीज हुआ है, और आपको हैरत होगी कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं, आईटी रिलेटेड एक्सपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स 25% इंक्रीज हुई इस साल। जो वहां से भी एक्सपेक्टेड ये है कि इनकम जनरेट होगा बिकॉज इट इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। और जहां तक आप इस पेंडेमिक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री में फायदा हुआ है तो वो आईटी इंडस्ट्री है, क्योंकि ये वाइड इंडस्ट्री है जिसके लिए आपको बेसिकली किसी लोकेशन की जरूरत नहीं होती और आप वर्क फ्रॉम होम के थ्रू भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। तो एक तो आपका आईटी रिलेटेड सेक्टर है, फिर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, फिर आपकी जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के एक्सपोर्ट्स है, आपकी जो है वो आपकी हलाल मीट की एक्सपोर्ट है। सबसे बड़ा सेक्टर आपका हलाल मीट की एक्सपोर्ट है, जिससे हुकूमत जो है वो जिसके ऊपर ये एस्टिमेट बनाया गया है कि ये भी इंक्रीज होंगी। इसके अलावा आपकी जो है वो सी फूड इंडस्ट्री जो है उससे भी आपको इनकम जनरेट होगा। तो बेसिकली एडिशनल टैक्स जो है उसमें जो अजम्पशंस हैं वो इन मेन सेक्टर्स के ऊपर रखी गई हैं जिसपे हुकूमत टारगेट कर रही है कि ये एडिशनल इनकम हमें इसमें जनरेट होगा। फिर जो है अगर हम आगे जाएं जिसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली कहाँ से रेवेन्यू जो है हुकूमत एक्सपेक्ट करती है, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से आपके पास जनरेट होता है 18%। फिर आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है जिसमें बेसिकली हुकूमत ज्यादा रिलाई कर रही है पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर, जो कि इस बात का हुकूमत एस्टिमेट कर रही है कि आने वाले साल में पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज होंगी, जिसका फायदा हुकूमत को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी मिली है गल्फ स्टेट से डेफर्ड पेमेंट्स की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो उससे भी फैसल साहब इंक्रीज होगा। टाइम आउट होने वाला है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल हम सेशन के एंड की तरफ जा रहे हैं। आबिद साहब ने जो बात की थी, जो मैं स्लाइड के थ्रू बता रहा था कि वो इंक्रीज जो है बेसिकली जो हुकूमत ने कहा है 1000 बिलियन का, वो कहाँ से जनरेट हुकूमत ने अज्यूम किया कि वहां से जनरेट होगा। जी ओवर टू यू। फैसल भाई कुछ सवाल आए हुए हैं उसका जवाब देते। सैयद नूर साहब है जी उनका जरा I think Syed Noor का क्वेश्चन है कि suggest new business categories beneficial for growth in 2020 to 21 year। जी सबसे ज्यादा इसके अंदर देखें अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो सेक्टर मेरे ख्याल में इस पेंडेमिक में ग्रो जिसने किया है वो दो सेक्टर्स हैं। एक हमारा आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर के अंदर स्कोप जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिकली किसी ऑफिस या किसी उसकी जरूरत नहीं होती और आप वर्क फ्रॉम होम के थ्रू भी काम आप कर सकते हैं। और दूसरी जो सेक्टर है वो आपका है जैसे आप ये फाइनेंशियल टेक्निक या उसे आप ये इसका फिनटेक का नाम देते हैं। अब आपको पता है ये होता क्या है, ये फिनटेक क्या होता है? बेसिकली फिनटेक जो है इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑनलाइन रिसीव्स एंड ऑनलाइन रिसीव्स एंड पेमेंट, ऑनलाइन सेल्स एंड परचेजेस। क्योंकि इस पेंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है,
तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट जो फायदा हुआ है वो ऑनलाइन रिटेलर्स को हुआ है। ऑनलाइन रिटेल सेक्टर एंड आईटी रिलेटेड सेक्टर्स आर द मेन सेक्टर which are the main winners of this situation, और जो कि 2021 में जो है बहुत आगे जाएंगे। This is what I think. Over to you, Vasfa. All right, so I think we have reached towards the end of the session. Thank you so much for educating all of us on this specific topic. I think I have learned a lot, and I'm definitely sure our participants must have learned a lot too, to whatever you guys shared, and hope to meet you all again soon. So yeah, thank you so much. इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो अगर हमारे पास मान लो 5 मिनट्स हैं तो बाबर अगर हम 5 मिनट्स में क्वेश्चंस माइक अगर अनम्यूट करके किसी क्वेश्चन लेना चाहें तो क्या हम ले सकते हैं? I think एक क्वेश्चन आया हुआ था, what is the scope and impact on local businesses, especially cattle and agriculture business? ये एक क्वेश्चन आया है सैयद नूर का, एक और। फैसल भाई आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करो। अब आवाज आ रही है जी? जी फाइन। इससे अगर मेरी स्लाइड को रेफर करें, जिससे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कहाँ से अस्यूम करिए कि एडिशनल टैक्स मिलेगा, तो उसमें एक टैक्स के अंदर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और लाइव स्टॉक सेक्टर भी उसके अंदर शामिल है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हलाल मीट इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा एक इमर्ज हो रही है एज एन इमर्जिंग मार्केट, तो बिल्कुल जो है इसका स्कोप आने वाले साल में बहुत ज्यादा होगा, बोथ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंड सी फूड इंडस्ट्री। मैं इसमें इजाफा कर दूं, शायद आपकी नॉलेज में भी हो ये बात। अभी पिछले 6 महीने पहले मलेशिया से कोई डेलीगेशन आई थी हमारे पास, तो ये हलाल मीट के हवाले से, जो इंडिया से बहुत बड़े काम के चल रहा था, लेकिन अभी हमसे कोई मेरे ख्याल से एग्रीमेंट्स वगैरह हुए इनके हलाल मीट के हवाले से। और इसलिए कि जो पाकिस्तान की जो कैटल्स हैं उनकी जो फीडिंग है वो नेचुरल फीडिंग है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बाहर मुल्कों में। तो मलेशिया से गवर्नमेंट भी यहाँ पे आए थे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग भी हुई थी, इत्तेफाक से बागडा साहब थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो ये बात हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला ये वाकई है कि अच्छा काम है, जो इससे इंडस्ट्री से जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला ये कोई काम फ्यूचर में काम होने वाला है इससे हलाल मीट पे इंशाल्लाह ताला। All right. हमारे अगर पार्टिसिपेंट्स की तरफ से किसी का क्वेश्चन हो हैंड रेज करे या अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन ले ले तो हम सेशन के एंड की तरफ जाएंगे। अगर किसी ने डायरेक्ट क्वेश्चन करना जी बस I think I just wanted to ask one more thing. There was a proposed budget, I guess, and then there's this actual budget. Is there any difference between that? जी वासवा, मैं इस क्वेश्चन का सवाल अगर मैं इसका जवाब आपको ऐसे दूं कि देखें, जो हमारी जो प्रपोज बजट और जो एक्चुअल बजट होता है उसमें एक टाइमिंग डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात तो आप इसको याद रखें कि जब आपके प्रपोजल्स आती हैं और जब एक्चुअल टाइम पे बजट प्रपोज होता है उस वक्त सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो बहुत सारी प्रपोजल्स जो हैं वो जाती तो हैं गवर्नमेंट के पास, बट वो हिस्सा नहीं बन पाती एक्चुअल बजट का, बिकॉज एट दैट टाइम जो है वो जो फोकस होता है वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाता है, या कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो चीज़ें उसमें नहीं इंक्लूड हो पाती। तो प्रपोजल्स के अंदर तो जैसे एक प्रपोजल में थी जो एक्सपेक्टेड भी था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जीरो रेटेड जो है वो फैसिलिटी मिल जाएगी, इट वाज हाईली एक्सपेक्टेड बट इट डिड नॉट टुक प्लेस। तो जो प्रपोजल्स होती हैं और जो एक्चुअल बजट होता है उसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट की अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हुकूमत इंक्लूड करना चाहती है बट वो इंक्लूड नहीं कर पाती क्योंकि वो आउटलाइन हो जाती हैं बाय दी अदर स्टोरीज या अदर क्या नाम है प्रायोरिटीज। तो लिहाजा प्रपोजल और एक्चुअल के अंदर हमेशा एक डिफरेंस जो है वो उसमें मौजूद रहता है। और आई थिंक जो है लेकिन इसके बावजूद व्हाट आई विल से दैट गवर्नमेंट को प्रपोजल्स को इंक्लूड करना चाहिए इफ दे आर कैन प्रैक्टिकल, जो कि इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें जो प्रैक्टिकल होते हुए भी इंक्लूड नहीं हुई। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओवर टू यू आबिद साहब। Abid Saab, Imtiaz sir, do you have anything to add to this? Ajib, it was very wonderful. You have hosted the program.
मैं खाली एक बात ऐड करना चाहूँगा, एग्रीकल्चर के हवाले से स्कोप तो है, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द करंट सिचुएशन, आपकी सबकी नॉलेज में होगा इस वक्त जो लोकस्ट की जो सूरत हाल पाकिस्तान में आई है और जो डिजास्टर आया है, तो मैं ये समझता हूँ एग्रीकल्चर भी बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट हुई है, जिसके अभी साइड इफेक्ट्स आपके पास नेक्स्ट ईयर आएंगे। इस साल नहीं आपको ये तमाम चीज़ों का पता चला, क्योंकि ऑलरेडी हम अपना जो है वो इस वक्त फसलें जो है वो तैयार थी और हम उनसे क्रॉप ले चुके थे, और अब ये नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में आपको पता चलेगा। तो बी केयरफुल तमाम चीज़ों के हवाले से, जो भी आप स्टेप लेने जा रहे हैं, और न्यू बिजनेसेस के हवाले से बड़े केयरफुल हो जाएं। और ये बात बिल्कुल अच्छी है कि जो है नई कैटेगरीज जो है उनकी तरफ जाना चाहिए। जो पेंडेमिक के हवाले से जो सूरत हाल नई क्रिएट हो गई है, उसमें हमें नई टेक्नोलॉजी के हवाले से काम करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ रही है, जैसे अभी वेंटिलेटर्स की तरफ चले गए हैं लोग हमारे, और एनआईटी यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है, इन पे काम करें। और इसी तरह की आने वाली जो है वो चीज़ें जो है वो न्यू, उन पे काम करें, मास्क पे काम करें, सैनिटाइजर्स हैं और इस तरह की जो डिसइंफेक्शन वाली मशीनरी है और इक्विपमेंट्स हैं, उन पे काम करें, ताकि इस तरह के और भी अगर कल को कोई पेंडेमिक्स हैं या कोई वबाएं हैं तो उनसे हम जो है वो निपट सकें। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स एवरीबॉडी। Okay, इम्तियाज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी सर, अभी इम्तियाज साहब बात कर रहे थे अभी। अच्छा, मैं थोड़ा वही थोड़ी सी बात आगे बढ़ा दूं मैं। ये जो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक्स के हवाले से जो पॉलिसी में चेंजिंग चाहिए सब ना, क्योंकि आपको पता है जो भी हालात चले हैं, जो टिड्डी दल वाला जो वाकया हुआ हमारे पास, जो डिजास्टर आया, काफी फसलों को नुकसान हुआ, उसके जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उस पर चेंजिंग करनी पड़ी गवर्नमेंट को। तो इन्होंने पिछले जो पॉलिसी में हमारे पास ये था कि हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जो एक्सपोर्ट करते थे लाइव स्टॉक्स और एग्रीकल्चर, ये वेजिटेबल्स, तो उस पर हमें सिर्फ एक्सपोर्ट हम करते थे, उसके लिए हमें बैंक की जरूरत नहीं पड़ती, फंडा फॉर्मिंग की जरूरत पड़ती, वैसे एक्सपोर्ट करते थे। तो अभी मेरी सजेशन ये है कि इसको खत्म कर दिया जाए, विदाउट फॉर्मिंग, विदाउट बैंक इन्वॉल्वमेंट उनको ना दिया जाए माल। इससे क्योंकि जो हमारे पास जो किल्लत होगी वो भी कम हो सकती है उसमें। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ी अच्छी बातें भी फैसल साहब की तरफ से, उन्होंने काफ़ी डिटेल हमें बताया बजट के बारे में, और इम्तियाज शेयर की, तो हमने काफ़ी कुछ इसमें सीखा। इस तरह के सेशन होने चाहिए, काफ़ी बड़े सेशन। थैंक यू। All right, so I think we are already short of time, so I'll just end the session. To our guests, thank you so much for sharing your insights with us, and to our participants, we'll be back soon with more professionals from the corporate world to share their expertise with you all. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़ जी। वास्ता ने मोर्चा होस्ट किया और बाबर आपने मोर्चा अरेंज किया, बहुत शुक्रिया आपके लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।